Hi, this is a project of our online examination system. We have named our project as Placement Guru. This project is being presented by Shubham Chandel and Vinita from Mary College. I am Vinita and let me introduce you to the topic and the project. Online examination system basically is a system which reduces the task of administrator and users. Similarly, our project also reduces a huge burden from administrators and users. जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपना क्वेश्चन पेपर कभी भी कहीं से भी सेट कर सकता है. बीइंग अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन हमारे प्रोजेक्ट को कहीं भी कभी भी यूज किया जा सकता है. हमारा प्रोजेक्ट पेपर वर्क रिड्यूस करता है. जो भी आंसर्स या रिस्पॉन्सेज कैंडिडेट फिल करेगा उसको उसी वक्त ऑटोमेटिकली चेक किया जा सकता है और इंस्टेंटली उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है और ऑनलाइन एग्जाम कभी भी कहीं पे भी कंडक्ट किया जा सकता है. The technologies which we have used are Microsoft Visual 2010 as the environment and programming language C Sharp. Looking at the database, we have used SQL Server Management System for database management. Telling you the context diagram, basically looking at the administrator part, administrator can add or delete a particular category. He can insert the questions of that particular category. He can view his designed question papers, delete his question papers, view all the user records, and view the results of each and every student. Context diagram on the part of user. A user can register himself, log in to give the exam, choose the particular category for that exam, give the exam, and of course, in the end, check his result. Now, explaining you the DFD. User comes, fills his detail, उसका login verify होता है using the authentication system, which is being managed by the administrator. As soon as the authentication is passed, student की profile fetch होती है जो कि उसको एग्जाम देने के लिए वैलिडेट करती है. जैसे ही यूजर एग्जाम के लिए जाता है वो अपना एग्जाम देता है, उसको क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं. इन दी रिजल्ट मार्क्स स्टेटमेंट क्रिएट होके आती है जो स्टूडेंट को प्रोवाइड होती है. एंड इफ इन केस द ऑथेंटिकेशन फेल्स वो इनवैलिड यूजर हो जाता है एंड देयर कम्स द नीड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड. Telling you the ER diagram. This is the ER diagram. Basically, we have a user with two attributes, that is username and password. The user registers himself using the registration system by providing the three details, that is username, email, and password. After getting registered, he chooses the category. The category has two attributes, that is category ID and name. The particular category he chooses is fetched by its name, and by fetching the name उसी particular category के questions आते हैं in the exam. Exam देने के बाद the user gets his result on the basis of his exam ID, marks, and his username, and the user receives the result. Looking at the administrator part, administrator के पास उसका ID, name और password है using which he logs in. जैसे ही वो log in करता है, he can create the category and add a question. So basically, how admin part and user part work together, it is यूजर रजिस्टर करता है. रजिस्टर करने के बाद वो कैटेगरी सिलेक्ट करता है. वो कैटेगरी एडमिन ने डिजाइन की है. एज सुन एज ही चूजेस द कैटेगरी ही इज वैलिडेटेड टू द एग्जाम. उस एग्जाम में शो होने वाले क्वेश्चंस एडमिन ने ऐड किए हैं. जैसे ही वो एग्जाम देता है द रिजल्ट इज प्रोवाइडेड और वही रिजल्ट यूजर को रिसीव हो जाता है. So this is how the ER diagram of our project is being displayed. Now Shubham will continue with rest of the part. Hello everyone, I am Shubham Chandel and Vinita has told you all about this project. So I would like to continue it further. So this question is comes in every person's mind: why online exam? Online examination is conducting a test online to measure the knowledge of participants of a given topic. Examination is also important thing to getting a job, which is required by everyone in any industry. सो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब कोई भी पर्सन ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जाता है या इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ पर उसका एप्टीट्यूड होता है तो वो हेजिटेट हो जाता है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन से आ सकते हैं. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम रखा जाता है कि ताकि वो पहले से प्रिपेयर होके जा सके वहाँ पर और उसको कोई इफेक्ट ना पड़े उसके इंटरव्यू पे. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लेसमेंट ग्रुप. प्लेसमेंट ग्रुप इज द प्रोजेक्ट नेम, our project name, and main objective of the project is to make easy to conduct a paper.
and offering several types of questions according to different categories, and reports analysis also. एंड नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ प्लेसमेंट गुरु. वैसे तो बेसिकली बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कराएगा, यूज़र फ्रेंडली ऑल्सो, बट प्लेसमेंट गुरु जो है इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन. एंड नेक्स्ट इज़ अ स्क्रीन शॉट ऑफ द आउटपुट. सो दिस इज़ द एडमिन पेज, एंड ये सिर्फ ओनली एडमिन के लिए है. इसमें कोई और यूज़र अगर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इनकरेक्ट बताएगा, क्योंकि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है एडमिन के पास ही होगा इसका. जब एडमिन लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद डैशबोर्ड अपीयर होगा. उस डैशबोर्ड में हमारे पास ऑप्शन होंगे: रिपोर्ट, ऐड ए न्यू कैटेगरी, ऐड क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू, डिलीट क्वेश्चन पेपर एंड लॉग आउट. ओके, एंड दिस इज़ द ऐड एंड डिलीट कैटेगरी. एडमिन जो है कैटेगरी नेम लिखेगा, ऐड का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है. ऐड कर सकता है कैटेगरी और डिलीट कर सकता है. और ये जो है टेबल बना हुआ है, जब कैटेगरी ऐड करेगा तो ये टेबल जो अपडेट हो जाएगा, और डिलीट करेगा फिर अपडेट हो जाएगा. एंड दिस इज़ द ऐड क्वेश्चन. इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करेगा और क्वेश्चन टाइप करेगा, और ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. जो भी आपको क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होंगे वो लिखेंगे. एंड उसके बाद करेक्ट आंसर है 1 2 3 4, जो भी आपको करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, वो क्रिएट करेंगे बटन पे, तो क्वेश्चन इज़ एडेड. नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन प्रीव्यू. इसमें कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी का आप क्वेश्चन पेपर पूरा देखना चाहते हो. वो एडमिन, इसमें भी ऑप्शन है एडमिन के लिए, तो पूरा पूरा पेपर सीन कर सकता है एडमिन कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं. नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट्स. इसमें जो है यूज़र जो यूज़र लॉगिन करके क्वेश्चन पेपर दिया होगा जिन्होंने, तो इसमें उसका पूरा डाटा होगा. ओके, एंड ये भी प्रीव्यू कर सकता है इसमें एडमिन कि किस किस यूज़र ने एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट क्या है, कि किस टाइम पे दिया है, किस डेट पे दिया है, किस कैटेगरी में दिया है, ये भी एडमिन को पता होगा. एंड नाउ विनीता विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट. So this is the login page in which we have provided our user the capability of logging in by using his username and password. He can also register himself by using new user. This is the screenshot of the choose by user page which will appear to the user after logging in. ये तीन ऑप्शन देता है: टेक अ टेस्ट, चेक द रिजल्ट एंड लॉग आउट. टेक द टेस्ट चूज करोगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पेज पे ले जाएगा जहां से आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो. रिजल्ट में आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, एंड लॉग आउट ऑफ कोर्स आपको अपने डिफॉल्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा. ये आएगा जब आप टेक द टेस्ट चूज करोगे. दिस इज द इंस्ट्रक्शंस पेज. एज सून एज यू चूज टू स्टार्ट द टेस्ट, it will redirect you to the select category page. At this page you will choose out your particular category. वो भी वो particular category जिसका भी आप quiz देना चाहते हो. You will submit that category. The quiz appears. This is the demo of how our quiz basically looks. It has 3 buttons: back, next and finish. Using back you can go at the previous question. Using next you can go of course forward, and finish आपका exam finish कर देगा and prompt your message that your exam is successfully submitted. दिस इज हाउ द रिजल्ट पेज लुक. इसके अंदर आप अपना नाम डालो, अपना रिजल्ट, चेक द रिजल्ट बटन पे क्लिक करो, आपको आपका रिजल्ट एक टेबल की फॉर्म में शो होगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन लॉग आउट. सो नाउ शुभम विल कंटिन्यू विद द प्रैक्टिकल. Now I will discuss the practical portion in this session. So look at the screen. This is the master page of the our project. एंड इसमें सिंपली मैंने कुछ नहीं करा, सिंपली डिज़ाइन करा है. एंड नेविगेशन मेन्यूज़ यूज़ करे हैं मैंने. आपको सोर्स कोड बताता हूँ मैं एक बार. सोर्स कोड पे गए, ये क्लिक करा, एंड नेविगेशन मेन्यूज़ मैंने यूज़ करे हैं. ये देखो नेविगेशन मेन्यू यूज़ करे हैं मैंने. इसमें कोडिंग यूज़ करी है इस पर की होम रजिस्टर जो भी है, और उसका पेज बनाया मैंने. उस पेज को उसको सीधा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, लिंक कर दिया, इसको नेविगेट कर दिया. एंड दिस इज़ द एडमिन लॉगिन जो करेगा उसका डिज़ाइन है, और उसको व्यू कोड बताता हूँ मैं आपको कैसे करा है. ये करा, ये क्लिक आ गया. इसमें मैंने सिंपली 3 पैकेज लिए हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, डाटा एंड एसक्यूएल क्लाइंट, डाटाबेस के लिए और नेम स्पेसिस के लिए. और ये जो मैंने लिया है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिया है एप्लीकेशन सर्विसेज के नाम से, जो वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल में होती है. ओके, एंड ये मैं सिंपली इसमें दो स्ट्रिंग पास करी है मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 में के लिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए यूआईडी एंड पासवर्ड. एंड सिंपली मैच करा है वैल्यूज़ को. अगर वैल्यूज़ मैच हो जाती है तो डाटा रीड करा है, मतलब उसमें से डाटाबेस से.
ओके, सिंपली वैल्यू मैच हो जाए तो लॉगिन सक्सेसफुली, तो ये रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देगा और डैशबोर्ड डॉट एएसपीएक्स फाइल में, अगर नहीं होगा तो वो नहीं करेगा और इनको बता देगा। ओके, एरर मैसेज कर देगा। अब आपको वो बताता हूँ मैं, डैशबोर्ड कहाँ गया, डैशबोर्ड, अच्छा वो रहा लास्ट में, ये पे गए डैशबोर्ड एएसपीएक्स। ये डिज़ाइन है, सिंपली डिज़ाइन करा है डैशबोर्ड एएसपीएक्स को। उसकी नेविगेशन की कोडिंग यूज़ करी है इसमें भी, एएसपी नेविगेशन की, और मेन्यू जनरेट कर दिया इसमें। एंड ये डिज़ाइन है यूज़र रिपोर्ट का, कि टेबल ही बनाया है इसमें मैंने, यूज़र डेट टेस्ट मार्क्स टोटल के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास ऐड ए न्यू कैटेगरी, कैटेगरी के लिए ये पेज बनाया मैंने। इसमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिया है, 2-3 बटन्स लिए हैं, एक ऐड लिया, डिलीट, एक क्लिक टू ऐड द क्वेश्चन, ये वाला लिया है। सिंपली आपको व्यू कोड बताता हूँ मैं, ये सेम है, वही हम लेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग लेंगे, एसक्यूएल कमांड लेंगे, सीएमडी एसक्यूएल, डाटा रीडर लेंगे, डाटा रीड करेंगे। ओके, एंड कनेक्शन ओपन करा है, एंड इसमें सिंपल सा मैच वो इंसर्ट करा है वैल्यूज़ को, जो भी हम इसमें लेंगे कैटेगरी में वाले टेबल में ऐड कर दिया है कैटेगरी को। और इसमें सिंपल हम डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करेंगे, जो ग्रिड व्यू के लिए डाटा शो करेगा, उसमें डाटा रीड करके बताएगा हमें जो भी अपडेट होगा। और ये जो मैं डिलीट के लिए यूज़ करा है, डिलीट कमांड, ठीक है। तो एडमिन वाला पोर्शन हो गया एंड यूज़र वाला भी हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ये डिलीट करा, एंड ये भी डिलीट कर देता हूँ, और ये भी। अब है ये ऐड क्वेश्चन वाला, इसमें सिंपली मैंने ड्रॉप डाउन लिया है और लेबल्स लिए हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं सिंपली, और मैं उसको व्यू कोड बताता हूँ एक बार। ये रहा, सिंपली वही हम 3 पैकेज लेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग लेंगे, कनेक्शन स्टेट ओपन होगी तो क्लोज कर देंगे उसको, प्रोस्पेक्ट है ना। ओके, सिंपली, और इसमें सिंपली वैल्यूज़ इंसर्ट करी है, इसमें जितने भी हम उसमें लिखेंगे वो सारी इंसर्ट करी हैं। क्वेश्चन टेबल का क्वेश्चन बनाया मैंने, एक टेबल का क्वेश्चन नाम का टेबल बनाया है, उसमें इंसर्ट हो जाएंगी वैल्यू, और वो सारी सिंपली कैटेगरी वो जितनी है वो सब इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी होगा वो उसमें डाटा बाइंड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ऐड क्वेश्चन वाला, एडमिन वाला ख़त्म हो गया। सो नाउ बचता है हमारे पास, ये प्रीव्यू पे गए हम, तो इसमें सिंपली मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है जिसको डाटा बाइंड करा है मैंने डाटाबेस से, एंड एक टेबल लिया है, टेबल को डिज़ाइन करा है जिसमें पूरे जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें शो होंगे। और सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ डाटा बाइंड कैसे करें, राइट क्लिक करेंगे एंड प्रॉपर्टीज़ में गए, क्लिक करा, और यहाँ पर डाटा सोर्स आईडी होगा, हाँ ये रहा, नीचे गए स्क्रॉल करा और डाटा सोर्स आईडी पे गए, मैंने पहले से लिया हुआ है तो हम न्यू डाटा सोर्स पे करेंगे क्लिक, ये रहा, इस पर क्लिक करा और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें डाटाबेस सेलेक्ट करके और ओके करेंगे हम। डाटा सोर्स आईडी 3 खुद ऑटोमेटिक आ गया उसमें लिखा हुआ। एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा, नाम आएगा जो हमने लिया हुआ है, उस पर करा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये कुछ दिक्कत आ रही है, अच्छा एक मिनट ना, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये करा, और एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ये जो भी हमारे डाटाबेस में टेबल होंगे उसको सेलेक्ट करके हम जो भी हमारे टेबल नेम होंगे उस पर सेलेक्ट करके हम उसको डाटा बाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके, सो इसको कट करा हमने, ये भी 9 पे करेंगे क्लिक, हो गया। अब हमारे पास सीधा डिलीट पेपर के लिए, इसमें भी मैंने सीधा डाटा बाइंड करा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है, डाटा बाइंड करा और डिलीट बटन लिया है, उसको डिलीट कर दिया मैंने सिंपली। ओके, नाउ इसकी वर्किंग देखते हैं, रन करा इसको, ये हमारे पास होम स्क्रीन आ गई है, ठीक है। ये होम पेज है, होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम स्क्रीन है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, और ये एडमिन लॉगिन के लिए है सिंपली, और ये यूज़र के लिए है, इसमें यूज़र लॉगिन करके टेस्ट दे सकते हैं, और ये अबाउट है, इसमें सिंपली कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन ही है। तो एडमिन लॉगिन वाला दिखाता हूँ आपको, एडमिन डाला मैंने यूज़र नेम, और पासवर्ड मैं इनकरेक्ट डालता हूँ कुछ, तो लॉगिन करा तो वो इनकरेक्ट बताएगा कि यूज़र आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो मैंने करेक्ट पासवर्ड डाला, यस करा, लॉगिन, तो ये डैशबोर्ड पे ले गया मैं। तो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, जितने भी यूज़र ने टेस्ट दिए होंगे तो वो डाटा अपीयर होगा पैक करके, इस पे गए हम ऐड न्यू कैटेगरी में, तो हम डाटा कैटेगरी ऐड करके बताता हूँ मैं आपको,
इसमें कैटेगरी ऐड करी मैंने जावा, ये ठीक है, ऐड करा और ये देखो जावा ऐड हो गया इसमें, ठीक है। और मैं डिलीट करके बताता हूँ, सिंपली जावा लिखा हुआ, डिलीट करा, क्लिक करा तो ये जावा डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्लिक टू ऐड द क्वेश्चन, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा क्वेश्चन ऐड क्वेश्चन वाले पे पेज पे पहुँच जाएंगे हम। वैसे भी जा सकते हैं, सिंपली बाहर से भी आ सकते हैं हम। ये देखो यहाँ पर मेन्यूज़ में दिया हुआ मैंने ऑप्शन, ये देखो ये भी पे जाएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू सेलेक्ट करा और इसमें क्वेश्चन ऐड करा, कुछ भी ऐसे ही, अभी मेरे को कुछ ऐसे कर देता हूँ मैं ऐड, सिंपली कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर 1 2 या 3, 2 दे दिया मैंने। और क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन इज एडेड, ये लिखा हुआ आ गया नीचे, ठीक है। और सिंपली क्वेश्चन ऐड हो गया तो लॉग आउट नहीं करता, मैं बैक जाता हूँ, बैक गए तो ये आ गया। क्वेश्चन पेपर मेरे को प्रीव्यू करना है, क्वेश्चन तो ऐड कर दिया, प्रीव्यू देखना, मेरे को देखना ही एडमिन ने कि क्या क्वेश्चन पेपर डाला है मैंने। तो इंटरव्यू पे क्लिक करूँगा तो ये इंटरव्यूज़ के जितने क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं वो इस पर आ जाएंगे। सी पे करूँगा तो सी पे आ जाएंगे जितने मैं क्वेश्चन ऐड करे हैं इसमें, ठीक है। सो बैक टू डैशबोर्ड और ये डिलीट क्वेश्चन पेपर है। सो इसमें हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर ही डिलीट कर देगा, ठीक है। मतलब कैटेगरी तो रहेगी एग्जिट, लेकिन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरा डिलीट कर सकता है इसमें एडमिन। तो डिलीट पे क्लिक करा तो क्वेश्चन इज डिलीटेड, ठीक है। और बैक टू डैशबोर्ड एंड दिस इज सिंपली, अब देखो कैटेगरी आएगी नहीं इसमें ऑप्शन, तो कैटेगरी डिलीट हो गई है। एंड दिस इज अ लॉग आउट। Vinita will continue the next part. So now let us take a look at the project and it's live running. This is our login page. इसके अंदर हमारे पास अलग अलग कंट्रोल्स हैं। किसी भी एक कंट्रोल को सेलेक्ट करो, गो टू द कोड पार्ट। हम लोग कोड पार्ट पे आए, इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस को कॉन्फ़िगर कराया है, दैट इज सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसके हमने वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल से उठाया है और हम हमारे एसक्यूएल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर इसको पास करेंगे। हमारी कंडीशन है कि अगर हमारा कनेक्शन स्टेट पहले से ही ओपन है तो उस पिछले कनेक्शन को क्लोज किया जाए और एक नया कनेक्शन स्टैब्लिश हो। हम लोगों ने एक एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जिसके अंदर हमारी कमांड्स और क्वेरीज जाएंगी। देन वी स्टार्ट द कोड पार्ट। हम लोगों ने क्वेरी पास आउट किया है फॉर द registration of username and password. We redirect the valid user to the choose by user page, and if not a valid user, we prompt him a message invalid username or password. So हम लोगों ने यहाँ पे एक सेशन क्रिएट किया। As this session gets successful, the user will be redirected to the next page. Now let's go to the choose by user page, जिस पे हम redirect हो रहे थे जब हमारा यूजर वैलिड था। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, टेक अ टेस्ट, चेक द रिजल्ट एंड लॉग आउट। एज द यूजर हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन तो उसके पास ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। उसकी विश है वो टेस्ट देना चाहता है, अपना रिजल्ट, अपना प्रीवियस रिजल्ट भी चेक करना चाहता है तो, और अपना लॉग आउट अगर वो सिर्फ आके सीधा लॉग आउट करना चाहता है तो। सो लेट्स गो अगेन बाय व्यूइंग द कोड। हम लोगों ने इसके अंदर अलग अलग बटन्स बनाए हैं। व्हेन वी क्लिक एट द बटन 1, हम लोगों को सेलेक्ट कैटेगरी के पेज पे भेजा जाएगा, दैट इज बटन 1। बटन 1 इज टेक द टेस्ट पेज। हम लोगों ने टेस्ट दिया, टेस्ट देने पे हम लोग उसको सेलेक्ट कैटेगरी के पेज पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, जिसके वो सेलेक्ट कैटेगरी एक ऐसा पेज है जिसके अंदर यूजर को अलग अलग कैटेगरी शो हो रही है। वो उस अपने पसंदीदा कैटेगरी को चूज कर सकता है और उस पर्टिकुलर कैटेगरी का क्विज जाके प्रोवाइड कर सकता है। So we redirected the user to the correct category page, and if he logs out तो हम उसको default पेज पे redirect कर रहे हैं। Now ये हमारा introduction पेज है। जब user take the test को choose करेगा, he will go to this page, and as soon as he chooses the start test, उसको हम redirect करेंगे हमारे quiz पेज पे, select category के पेज पे। बेसिकली उसने चूज टेस्ट किया, we bring him to the select category page। इसके अंदर हम लोगों ने डेटा बाइंडिंग यूज किया है। हम लोगों ने हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में डेटा को बाइंड किया है विद द टेबल ऑफ द कैटेगरी।
तो हम लोगों ने डेटा सोर्स को बाइंड किया, इसका भी कोड एक बार देख लेते हैं. लेट्स गो टू द व्यू कोड पार्ट. ये हमने इसका कोड देखा, ये हमारा कोड है. इसके अंदर भी हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को पास किया हुआ है. एज सून एज ही क्लिक्स द ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसको सिलेक्टेड वैल्यू शो हो जाएगी, मतलब उसको हम रीडायरेक्ट करा देंगे बेसिकली उसके पर्टिकुलरली सिलेक्टेड वैल्यू पे, और वो वैल्यू हम जो डेटा बाइंडिंग से उठा रहे हैं फ्रॉम द टेबल कैटेगरी, यहाँ पे हमने उसको रीडायरेक्ट कराया टू द पर्टिकुलर कैटेगरी क्विज. जिस भी कैटेगरी को उसने सेलेक्ट कैटेगरी पेज पे सेलेक्ट किया है, उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड वैल्यू के पेज पे, क्विज पेज पे हम उसको रीडायरेक्ट करा रहे हैं हमारे यूजर को. So as soon as you choose the category, he comes to the quiz page. अब quiz page के अंदर हम लोगों ने 4 तरीके के फंक्शनैलिटीज ऐड किए हैं. एक हमारा लॉग आउट, दूसरा हमारा टाइम, दैट इज विच पर्टिकुलर टाइम इज गोइंग ऑन जब वो क्विज दे रहा है. मैसेज पार्ट बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर बताएगा, और लास्ट में इट विल शो कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आप दे रहे हो. उसके बाद हमारा बेसिक क्वेश्चन पार्ट जो वो क्वेश्चन टेबल से फेच करेगा, और हमारे ऑप्शंस in the form of radio buttons. So let's take a look at its code. इसके कोड को देख लेते हैं. हम इसके कोड पे गए, ये हमने इसका कोड बनाया है. इसके अंदर भी हमने SQL क्लाइंट, टेक्स्ट, वेब सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन इन 4 क्लासेस को बकायदा लिख के इनहेरिट किया है. Now we created the objects for cookies, command object and the data reader. हम लोगों ने अलग अलग वेरिएबल लिए हैं for each and every functionality which we are performing. Since हमें हर question ID को increase करना है, हमें हमारे count को calculate करते हुए चलना है, हमें हमारे सही options पे हमारे answers के सही marks को calculate करना है, wrong answers पे हमें हमारे answers को minus करना है. बहुत सारी अलग अलग functionalities के लिए we have taken these variables. हमारी query के लिए we have used QRY and SQRY. Now we started the connection. Again using the connection string जो हमने वेब कॉन्फ़िग फाइल से उठाई है. हमने फिर से एक सेशन क्रिएट किया. जो भी हमारे यूजर इस वक्त लॉग्ड इन है टू गिव द एग्जाम, वो पर्टिकुलर यूजर इस सेशन के अंदर शो हो रहा है. जैसे ही वो स्टार्ट करेगा कुछ, तो उसको ये सारे हम लोगों ने उन सबके मैनेजमेंट के लिए इन वेरिएबल्स को हमारे क्वेरी स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है. सो हम लोगों ने कनेक्शन ओपन किया. We started with the query of select star from table questions, जिसके अंदर हमारे questions दिखा रहे हैं. Now हमारा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कराया. कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने हमारे क्वेश्चंस टेबल में से हमने क्वेश्चंस को फेच कराया. नाउ द क्वेश्चंस कम्स आउट. हर एक पर्टिकुलर डेटा रीडिंग के बाद, एग्जीक्यूट रीडर हमने इसीलिए लिया क्योंकि हम बेसिकली डेटा को रीड कर रहे हैं. डेटा को रीड करने के बाद हर क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 by 1, एंड एज सून हैज द यूजर विल रीच द लास्ट क्वेश्चन, उसको मैसेज के जगह पे मैसेज लेवल में प्रॉम्प्ट होगा दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. नाउ हम लोगों ने हमारा टेस्ट टाइप के अकॉर्डिंग क्वेरी कराया, एग्जीक्यूट कराया रीडर को. हमने हमारे काउंट को लगातार इंक्रीज किया. हमारा कनेक्शन क्लोज हुआ. हम लोगों ने बैक पे किया. वी हैव 3 buttons इन दिस पेज, दैट इज बैक, नेक्स्ट एंड फिनिश. बैक करते ही तुम पास्ट पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस पे जा सकते हो. नेक्स्ट क्लिक करके ऑफ कोर्स यू विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फिनिश करके you will finish up the test. And as soon as you choose to finish the test, you will have your values inserted into the table of result, जिसके अंदर तुम्हारे total marks, तुम्हारा नाम और तुम्हारी आईडी बेसिकली स्टोर हो जाती है. तो जब भी तुम रिजल्ट चेक करने जाओगे, तुम लोगों को तुम्हारे रिजल्ट के दिखेगा तुम्हारी पर्टिकुलरली आईडी के बेसिस पे. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत. जैसे रेडियो बटन 1, इफ वी हैव क्वेश्चन 1 एंड वी हैव 4 ऑप्शंस, देन रेडियो बटन 1 denotes the first option, radio button 2 denotes the second option, radio button 3 denotes the third option, and of course radio button 4 denotes the fourth option. तो जो भी correct option होगा that will get selected, and your count, that is marks, will get increased, and the question will increase with 1 as soon as you press next. Now as we finished it, your back will be false, your next will be false, you finish. As soon as you finish the page, a prompt will come and exam successfully submitted.
एग्जाम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आपका और आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट आएगा that will wish you from our side all the best for your results. Now अब हम लोग क्या करेंगे, ये उसके मैसेज का कोड था जब वो प्रॉम्प्ट करेगा. अब हम क्या करते हैं, we will see the result पेज जिसके अंदर हमने डेटा ग्रिड व्यू को ऐड किया हुआ है. ये डेटा ग्रिड व्यू को ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या फायदा होगा कि जब भी आप हमारा नाम एंटर करेंगे एंड वील प्रेस चेक द रिजल्ट, वो पर्टिकुलरली उस डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ही हमारे को हमारा रिजल्ट शो करेगा. So this is how our result page will come. So let's see the live running of the project. User part, we log in. हमने हमारा यूजर नेम डाला. This is not a registered user, let me tell you. This is just to show you कि हाँ हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर नहीं है and we will register him. So enter the password. लॉगिन किया. सिंस यूजर रजिस्टर नहीं है हम लोगों ने उसको इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड प्रॉम्प्ट कराया है एज वी डिड इन आवर कोड. सो नाउ वी रजिस्टर द न्यू यूजर. ये हमने यूजर नेम पे यूजर नेम डालते हैं विनीता. वी टाइप द ईमेल. लेट्स राइट इट. Password. Here is the password and now I log in. I am redirected to the login page since I am registered successfully now. मैं अपना यूजर नेम डालती हूँ, मैं अपना पासवर्ड डालती हूँ. ये मेरा पासवर्ड है, मैंने इसे डाला. Now I can view my password. So let's log in. ये हमने लॉग इन किया. हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं. चूज बाय यूजर पेज, दैट इज टेक द टेस्ट. हम लोगों ने टेस्ट को स्टार्ट किया. वी चूज द कैटेगरी, सबमिट. नाउ वी आर हैविंग द ऑप्शंस. वी हैव 7 क्वेश्चंस. This is the options. Let's start the quiz. So first, next question. Let's submit the answer for second. Next question. We can go back also. Next. Now आंसर चूज किया. नाउ नेक्स्ट. फोर्थ अगेन. नेक्स्ट. फिफ्थ चूज इट एंड नेक्स्ट. This is some random questions and options. Chose it. Now next. Since the 7th question was the last question, it prompted this was the last question. Let's finish it. We finished this. Now the prompt occurred. Exam successfully submitted and the result will be prompted to you by clicking at the check the result page. Let's check the result. Here it is. Now let's enter my name. I check the result. And these are my results, my current result and my previous results, which I have given with the ID or with my name. That is it. This is how the user part works. Let's log out. We have reached at our main page.